ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ 'ਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣेंगे, ਉਹ ਸਭ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਮਾਈ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਇੱਛਾ, ਸ਼ਿਕਰਾਤਮਿਕ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਨ, और असी तुहाडे पाक और पवित्र वचन द्वारा बदलते और टहलते चल जाइए, डिफरेंट मैन बनते चल जाइए। ऐसी प्रभु उसकी महान अनुग्रह कृपा ना फर
ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਔਰ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। कलाम च लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहते तुमने, तुसी लोगों ने मैनू नहीं चुनिया, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या बात है। लेकिन परमात्मा ने सानू चुने और तुम्हें नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया? नियुक्त का मतलब होता है किसी नू किसी काम के लिए ठहरा देना। तो जो परमात्मा ने सानू चुनिया तो सानू नियुक्त भी किया चुन के। तो किस काम लिए नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ। क्या बात है। नियुक्त किस लिए होना है? ताकि फल लेके आइए। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल तो लिया, ये नहीं है कि थोड़े दिन फल जीवन च दिखा उस तो बाद फल गायब होया। लेकिन फल वचन की जो डिमांड है वो की है कि फल तुहाडे जीवन दे विच बना रहे। सॉरी, कि तुम मेरे नाम से, प्रभु कहते कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। तब परमेश्वर ने एक क्वालिटी दसी है, क्योंकि सानू परमेश्वर ने चुनिया, नियुक्त किया कि जाके असीं फल लेके आइए। और ये फल किहड़े हैं? पवित्र आत्मा जी के फल, जो कि अपने पढ़े हुए हैं, तुसीं भी पढ़े, मैं भी पढ़े हैं। और ये पवित्र आत्मा जी के फल साडे विच बने रहन, ताकि जो कुछ असीं पिता तो मंगीए तो पिता सानू देवे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उस वक्त ये वचन साडे जीवन दे विच पूरा होएगा, जदों असीं मंगांगे। कदों पूरा होएगा? जदों फल साडे जीवन दे विच बने रहेंगे। नहीं तो असीं बहुत बार बहुत कुछ मंगते हैं लेकिन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? आंसर ये है, क्यों? क्योंकि फल तुहाडे विच नहीं बनया होया। सब तो पहला तुहाडे अंदर फल लगे होने चाहिए हैं। उस वक्त मांगोगे तो मिलेगा, ता पिता तो मिलेगा। सो ये परमात्मा की डिमांड है। प्रभु यीशु मसीह जी ने इन्हों डिफरेंट इसलिए किया है कि बहुत सारा फल लियान और ये डिफरेंट मैन का फल बनया रहे, क्योंकि चुनिया, अलग किया, डिफरेंट किया। प्रभु का एक किया कर परमात्मा ने है।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪਰ मैं चाहांगा नहीं दिया करांगा, नहीं की करांगा। ये मेरी मर्जी है, ये परमात्मा की मर्जी है जी। ये डिफरेंट मैन वो है ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ वचन पढ़ांगे। एक पहला सैमुअल 10 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ांगे। प्लीज़ कर दो तुसी भी। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। आप पढ़ेंगे तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब कदों? जो डिफरेंट होवांगे, जो संसार तो अलग होवांगे, फिर परमात्मा का आत्मा तुहाडे उपर बल नाल उतरेगा। यीशु मसीह नाम सचमुच। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। जो यहोवा का आत्मा बल नाल उतरेगा, तू नबूवत करेगा परमात्मा नाल मिल के और तू होर ही मनुष्य बन जाएगा। एक डिफरेंट मैन, अलग किस्म का मनुष्य बन जाएगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमात्मा का। फिर ये डिफरेंट मैन कुछ होर ही मनुष्य बन जाते हैं। जो ये डिफरेंट मैन कुछ होर मनुष्य बन जाते हैं तो फिर ये डिफरेंट मैन नू राजा के महल के विच प्रवेश कराया जाता है। क्या बात है। जो ये डिफरेंट मैन कुछ होर ही मनुष्य बन जाते हैं फिर इन्हों कित्थे प्रवेश कराया जाता? राजा के महल च। डिफरेंट मैन राजा के महल के विच प्रवेश करते हैं। फिर राजा के महल के प्रवेश करने की क्वालिटियाँ देखते हैं आप कि ये राजा के महल के जो प्रवेश कराया जाता है तो इन्हां दे नाल क्या कुछ कित होंदा है राजा के महल के प्रवेश करने के लिए, वो आप देखते हैं। प्लीज़ मैं थोड़ी जी स्टेटस बना रहा, न्यू भर रहा ताकि ये उपर उसारी होवे, ताकि इस न्यू के उपर यीशु मसीह बन जाए। तो फिलहाल मैं न्यू भर रहा, सो इस करके थोड़ा जा मैनू हले बर्दाश्त करो, फिर आप अगे चल के खुलासा करते हैं प्रॉपर। प्रभु की दया कृपा नाल मेरे विच अपना कुछ नहीं है, सचमुच मेरे च अपना कुछ नहीं है। जो कुछ पिता मैनू कहते हैं उही मैं बोलदा, मैं अपने आप तो कुछ नहीं बोलता सचमुच। सो आपां कलाम तुसी मेरे नाल खोलो, भजन सहायता 45 अध्याय उसका 13 और 14 और 15 वचन पढ़ांगे। प्लीज़ खोलो, मैं भी खोलदा।
धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ है भी यीशु मसीह, तारीफ है भी यीशु मसीह, तारीफ है भी यीशु मसीह, तारीफ है भी यीशु मसीह। सोपा पढ़ दें। राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे गड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। क्या बात है। उन्होंने एक अलग किस्म के ਜਿਹੜੇ डिफरेंट मैन है, एक अलग किस्म के कपड़े दिते जाएंगे और अलग किस्म के वस्त्र जो उन्होंने पहनाए गए हैं। वो वस्त्रों के उत्ते की है, वो वस्त्र कैसे हैं? अति शोभ्यमान वस्त्र हैं और उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, कढ़ाई कढ़ी हुई है बहुत सोहनी। और बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। बूटेदार वस्त्र पा के राजा दे कोल पहुंचाई जाएगी। और डिफरेंट मैन, जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। हालेलुया। वह उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वह आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी। क्या बात। वह आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वह राजा के महल में प्रवेश करेगी। क्या बात है। फिर वह राजा के महल में प्रवेश करेगी। हालेलुया। डिफरेंट मैन ਨੂੰ बहुत सारा आदर मिलता है। ये आदर तुसी देखिया वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़िया कि डिफरेंट मैन ਨੂੰ ਕੀ आदर मिलिया। डिफरेंट मैन ਨੂੰ बहुत सारा आदर मिलता है और बहुत सारे संतां नाल। वो कुमारियां कौन है? संत है परमात्मा दे। बहुत सारी कुमारियां, बहुत सारे संतां नाल और डिफरेंट मैन का मेल मिलाप हुंदा है। बहुत सारे संतां नाल उस डिफरेंट मैन का मेल मिलाप हुंदा है और बहुत सारे संत उस डिफरेंट मैन का पीछा करते। तुसी ये देखो, बहुत सारे संत उस डिफरेंट मैन का पीछा करते हैं और उस डिफरेंट मैन नू एक अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्या बात है। एक अलग प्रकार के वस्त्र उस डिफरेंट मैन नू पहनाए जाते हैं। फिर आपां निर्गमन की किताब च आपां पढ़ांगे। निर्गमन की 31 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ांगे। कड्डो प्लीज़ मेरे नाल निर्गमन 31 पढ़ांगे जी। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहते और मैं उसको किसको जी? जो डिफरेंट मैन है, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं। क्या बात है। इस डिफरेंट मैन नू देखो परमात्मा ने किन्नी चीज़ों नाल भरपूर भर दिता। फिर पढ़ते हैं आप एक बारी फिर ये वचन नू फिर दोहराने हैं। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, सब तो पहला नंबर 1 परमेश्वर की आत्मा नाल, नंबर 2 बुद्धि नाल,
नंबर 3 प्रवीणता नाल, नंबर 3 ज्ञान नाल, और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा, सारे प्रकार के कम्मां दी समझ देने वाली आत्मा नाल प्रभु जी मैं प्रभु कहते मैं भरदा। ये सारा कुछ उस डिफरेंट मैन के अंदर ये क्वालिटियाँ भर जांदियां। क्या बात है। फिर ये सारे गुण इस डिफरेंट मैन विच आ जाते हैं। फिर इस तो बाद आप एक होर पढ़ते हैं वचन, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 और 13 वचन पढ़ांगे। इफिसियों कटते हैं। मैं थोड़ा जा प्रॉब्लम च है, दरअसल मेरा ऑपरेशन होया, इस करके मैं इस ढंग नाल बैठा तो मैनू वचन कढ़न च भी टाइम लगता है, क्योंकि मेरे मत्थे ते भी लगे हुए हैं, स्टिच लगे हुए हैं, लत्त ते मेरा प्रेशर है। ओके मैं मेरा लत्त का ऑपरेशन होया पिया, प्लस्तर चढ़िया होया, और मैं इस करके पर फिर भी लेकिन मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम रुके, कि मैं अपने दुख नूं देखा कि नहीं मैं तो बैड ते पिया, कोई गल नहीं वचन फिर पावांगे। नहीं, परमात्मा का काम नहीं रुकना चाहिए। असी किसी भी हालात दे विच होइए, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए। इस करके मैंने थोड़ा वचन कढ़न दे विच थोड़ा जिहा टाइम लगता है, प्लीज़ मैनू बर्दाश्त कर लेना, ये मैं तुहानूं दसना चाह। थैंक यू यीशु मसीह नाम च तुहानूं प्रभु सबनों नूं यीशु मसीह नाम च आशीष देवे, सचमुच आशीष दे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों आप प्लीज़ वचन कढ़ांगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो पढ़ांगे आप इफिसियों 11 12 13 4 का पढ़ते हैं। उसने मतलब परमात्मा ने, यीशु मसीह जी ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या बात है, क्या बात है। उन 13 वचन पढ़ांगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। प्रभु जी, ये परमात्मा ने कुछ अपने संतां बारे, अपने लोगों बारे दस्या कि ये सारे काम परमेश्वर के डिफरेंट मैन करनगे। ये संत भी जिन्हां बारे प्रभु ने अपने नाल गलबात की है वचन द्वारा, ये सारे काम भी वो हैं, ये सारे संत भी वो हैं, ये सारे लोग भी वो हैं ਜਿਹੜੇ डिफरेंट मैन है, संसार तो अलग है, संसार नाल मिल कर नहीं चलते। ये वो लोग हैं, ये वो सारे काम परमेश्वर दे, ये सारे काम किदे हैं? परमेश्वर दे हैं। ये सारे काम परमेश्वर दे डिफरेंट मैन करनगे, तां जो परमेश्वर दी देह उन्नति पावे। क्यों करनगे? ताकि परमेश्वर दी देह उन्नति पावे। प्रभु यीशु मसीह नाम च हालेलुया। देह एक जिहड़ा शरीर हुंदा है, वो एक अंग नहीं हुंदा। हुण मेरा अंगूठा है, ये कल्ला है, ये कल्ले नाल मिला के तो मेरा एक अंग नहीं बन रहा। देह दे विच बहुत सारे अंग है।
ਤਾਂ ਦੇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ? ਮਨ। ਮਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। क्या बात। ताकि एक देह बन जाइए और एक देह बन के की हो जाएंगे? एक डिफरेंट मैन बन जावांगे। सब तो पहला डिफरेंट मैन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच आए, वो सब तो ज़्यादा अलग सीगे, वो सब तो अलग सीगे। प्रभु यीशु मसीह वो संसार दे नाल नहीं मिलते सी। प्रभु कहते जिस तरह मैं संसार दा नहीं है, उस तरह वो भी जड़े मेरे हैं वो भी संसार दे नहीं है, वो डिफरेंट मैन है। हालेलुया। तो असी डिफरेंट मैन है। साडा परमात्मा भी संसार नाल नहीं मिलता सी, संसार जैसे काम नहीं करता सी। संसार नाल मिलन का मतलब संसार जैसे काम नहीं करता सी। इस तरह का संसार नूं तां मिलते हैं, लेकिन संसार जैसे काम नहीं करना है। संसार 'च तां प्रभु यीशु मसीह भी जांदे तुरदे फिरदे सीगे, लेकिन उन्हां जैसे काम नहीं करते सी। इस करके असी प्रभु यीशु मसीह वांगू डिफरेंट मैन बन जावांगे जदों एक मन हो जावांगे। हालेलुया। फिर आपां एक वचन होर पढ़ांगे। बड़ा मज़ा आ रहा, सचमुच मैनू तो बहुत मज़ा आ रहा। वचन करके, वचन बोल के, वचन सुन के मैनू बहुत मज़ा आ रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह नाच मुझ दानिश पर है। यीशु मसीह नाच। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तारी प्रभु यीशु मसीह, तुहाडा धन्नवाद होवे, तुहाडी वडियाई, तुहाडी महिमा होवे प्रभु। आपां एक वचन होर पढ़ांगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ांगे। प्लीज़ तुसी मेरे नाल वचन खोलो। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ तारीफ। लो जी, पढ़ते हैं वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर किया मतलब परमात्मा की ओर तो किया गया। अभिषेक का मतलब हुंदा है किसी नूं किसी दे काम दे लई ठहरा देना। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। वो अभिषेक तुहाडे विच बनिया रहंदा है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें
बने रहते हो। क्या बात है। जिस तरह परमात्मा ने सानू सिखाया है उसी तरह ही ਅਸੀਂ परमात्मा ਵਿੱਚ बने रहने हैं। फिर ਇਹ डिफरेंट मैन परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहते हैं। परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहन ਦਾ मतलब है परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना, परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े रहना, परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ अटल रहना, वचन तो इधर उधर नहीं होना। ਇਹ डिफरेंट मैन परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहते हैं क्योंकि उन्हों जो अभिषेक होया वो कित्थों होया? परमात्मा वालों होया। क्या बात है। ये अभिषेक स्वर्ग तो होया। इस करके ये परमेश्वर दे अभिषिक्त परमेश्वर दे विच परमेश्वर दे वचन दे विच परमेश्वर दा मतलब है परमेश्वर दा वचन परमेश्वर दे वचन दे विच बने रहंदे हैं यीशु मसीह नाम च। हालेलुया। फिर एक चीज़ आपां होर देखते हैं डिफरेंट मैन दे विच। ये डिफरेंट मैन दे विच कुछ क्वालिटियां परमेश्वर भेजते हैं स्वर्ग तो। ये डिफरेंट मैन दे विच कुछ क्वालिटियां परमेश्वर भेजते हैं स्वर्ग तो। हुण आपां जानते कि क्वालिटियां की हैं, वो क्वालिटियां किहड़ियां? ये 5 क्वालिटियां। वो 5 क्वालिटियां मैं तुहाडे नाल प्रभु यीशु मसीह नाल शेयर करदा। डिफरेंट मैन दे विच 5 क्वालिटियां किहड़ियां? सो ध्यान नाल सुनियो कि यहोवा कलीसिया नूं की आखदा है। ध्यान नाल सुनो। नंबर 1 पहली क्वालिटी, ये व्यर्थ की आदर की इच्छा नहीं करते। ये डिफरेंट मैन व्यर्थ दे बेकार दे आदर की इच्छा नहीं करते कि कोई साडा आदर करेगा। नो नो नो, ये उस बेकार दे आदर की इच्छा नहीं करते डिफरेंट मैन। पहली क्वालिटी उन्होंने विच ये हुंदी है। नंबर 2 दूजी क्वालिटी। 5 क्वालिटियां दसियां, 5 दसांगे। दूजी क्वालिटी सुनो, इन्हां दे अंदरूनी इंसान दे विच गहरा अंदरूनी आराम हुंदा है। इन्हां दे अंदरूनी इंसान दे विच गहरा अंदरूनी आराम हुंदा है। ये शांत रहंदे, अंदरूनी आराम हुंदा है, इन्हां दे गहरा अंदरूनी आराम हुंदा है। ये दूजी क्वालिटी इन्हां दे अंदर हुंदी है। हुण तीजी क्वालिटी देखांगे, ये शांत रहंदे हैं और इन्हां दा सारा भरोसा परमेश्वर उत्ते हुंदा। कोई भी इन्हां दे जीवन दे विच कुछ भी हुंदा रहे लेकिन ये अशांत नहीं हुंदे, शांत रहंदे हैं और इन्हां दा सारा भरोसा परमेश्वर उत्ते हुंदा है। ये वो डिफरेंट मैन है। और चौथी क्वालिटी इन्हां दी है, ये अपनी अखां अगे छोटे बने रहंदे हैं। अपने आप नूं वड्डा नहीं समझते, अपने आप नूं छोटा समझते हैं, दीन रहंदे हैं, नीवें रहंदे हैं। ये अपनी अखां अगे छोटे बने रहंदे हैं। ये क्वालिटी इन्हां दे अंदर। ये क्वालिटियां तो स्वर्ग तो आईयां, इन्हां दी अपने वल्लों कुछ नहीं है। हुण पंजवीं क्वालिटी देखते हैं, ये अपने बारे घट सोचते हैं। कितना सोचते हैं अपने बारे? घट सोचते हैं। ये हमेशा अपने भैन भाइयों बारे सोचते हैं जिहड़ा परमेश्वर का वचन सुनते और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, सुनते हैं और चलते हैं। ये उन्होंने बारे सोचते हैं। ये अपने पड़ोसियों बारे सोचते हैं। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी नूं अपने समान प्यार कर जिस तरह तू अपने आप नूं प्यार करदा। ये वो लोग हैं, ये अपने बारे घट सोचते हैं, अपने पड़ोसी बारे, अपने विश्वासी भाइयों बारे, अपनी कलीसिया बारे ज़्यादा सोचते। सो ये 5 क्वालिटियां वो डिफरेंट मैन दे विच हुंदियां। सो मेरे भैनों ते भरावो, आप सब जो सुन रहे हो परमात्मा का कलाम कि यहोवा कलीसिया नूं की आखदा है, जो आप सुन रहे हो, जो होर अगे नाल जुड़ के इस चैनल दे
सुनेंगे। आप सब नू मैं बेनती प्रार्थना करदा कि आप सब मेरे पीछे ये अंगीकार करें कि प्लीज़ आप सारे जने बोलो और अखा मिचो, आपां ये अंगीकार करांगे। प्लीज़ सारे जने अखा मिचो और प्रभु कहते तू मन तो विश्वास कर और मूँह नाल अंगीकार कर, जो तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तो असीं मन तो विश्वास करते हैं और मूँह नाल अंगीकार करते हैं, तो जो हुण आपां बोलांगे वो साडे लिए हो जाएगा यीशु मसीह नाम च। बोलो आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रभु यीशु असी सब तुहाडे इस कलाम दे द्वारा, इस कलाम दे सुनन दे द्वारा असी भी सब डिफरेंट मैन बन जाइए, ताकि परमेश्वर दी देह उन्नति पावे और एक डिफरेंट मैन दी सारी क्वालिटी साडे सबना दे विच आ जावे। ये अंगीकारां नूं प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदे हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन और आमीन। सो सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी। तुहानूं सबना नूं इस वचन द्वारा मैं दानिश प्रभु यीशु मसीह नाम च तुहानूं आशीष दिना। आमीन आमीन। जय मसीह दी।